Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will be discussing yet another an important function of management, which is controlling. We'll be discussing the controlling function in two parts. Part 1 as part of lecture number 9 and part 2 as part of lecture number 10. Let's see what we intend learning in today's lecture. We'll be seeing what is control and why is it important. We'll be defining controlling. We'll discuss the reasons as to why the controls are important and why controlling is backbone in performance of any organization. We'll be explaining the planning and controlling link, a bridge which is in between these two. And in the control process, we'll describe the 3 steps in the control process. We'll explain why what is measured is more critical than how it is measured. We'll explain the 3 courses of action managers can take in controlling. We'll see the controlling organizational performances. We'll define organizational performance. We'll describe the 3 most frequently used measures of organizational performance. In part 2, that is lecture 10, we'll be discussing tools for measuring organizational performance. We'll see contrast in feed-forward, concurrent, and feedback controls. We'll explain the types of financial and information controls managers can use. We'll also describe how balanced scorecards and benchmarkings are used in controlling. Then we'll be seeing certain contemporary issues in control. We'll describe how managers may have to adjust controls for cross-cultural differences. We will discuss the types of workplace concern managers face and how they can address those concerns. We'll also be explaining why the control is important to customer interactions, and the last, we'll define corporate governance. So, dear students, after having seen the learning outcomes of lecture 9 and lecture 10, let's move to the lecture. This slide must be a strange slide for you, as this is the slide which we studied in most probably lecture 1 or lecture 2. Who are managers? What managers do? मैनेजर्स को हमने पढ़ा कि ये वो शख्स होता है या वो शख्सियत है जो चीजों को मैनेज करती है, चीजों को ऑर्गेनाइज करती है, जो चीजों को प्लान करती है, जो चीजों को लीड करती है और जो चीजों को कंट्रोल करती है. फिर मैनेजर्स के फंक्शन क्या हुए? मैनेजर्स के फंक्शन जो हमने
पढ़े और पहले हम पढ़ चुके हैं वो थे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। इनमें से 3 फंक्शंस यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और लीडिंग, इनको हम तफसील से अपने साबका लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। और आज जो लास्ट मैनेजरियल फंक्शन है, जो फंक्शन मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं यानी कि कंट्रोलिंग, उसको हम तफसील से देखेंगे। आपकी दोहराई की खातिर चीज़ों को रिकैपिचुलेट करने के लिए मैंने ये मुनासिब समझा कि हम एक दफ़ा ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और लीडिंग को भी देख लें, ताकि हमें जो मुतफरक लिंक इस्टेब्लिश करने हैं, उनको लिंक्स को इस्टेब्लिश करने में आसानी रहे। तो जनाब, the first function which we studied was planning. Planning is all about defining goals, establishing strategies to achieve goals, developing plans to integrate and coordinate activities. ये वो मंसूबाबंदी है जो आप किसी भी कारोबार को शुरू करने के लिए, उसको बढ़ोतरी देने के लिए, उसको एक्सपेंड करने के लिए जो आप लेते हैं, जो एक्शन देते हैं, वो प्लानिंग कहलाती है। We discussed it at length during our lecture also and during the workshops. The next thing which we studied was organizing. हमने देखा कि कैसे चीजों को ऑर्गेनाइज किया जाता है, कैसे चीजों को इकट्ठा किया जाता है। So, arranging and structuring work to accomplish organizational goals. हम जब ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहे थे तो हमने बार बार इस बात पर फोकस किया कि क्यों हमने चीज़ों को जब ऑर्गेनाइज करना है, हमने ऐसे ऑर्गेनाइज करना है ताकि हम अपनी जो कंपनी है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसको आगे लेके चलें। हम ऐसे चीज़ों को अरेंज करें और ऐसे स्ट्रक्चर करें कि हम उस मैनेजमेंट के ज़रिए उस ऑर्गेनाइज करते हुए चीज़ों को हम आगे लेके जाएं। सो ये देखने के बाद जो अगली चीज़ हमने देखी वो थी लीडिंग। लीडिंग के ऊपर हमने उस वक्त समझने की कोशिश की कि लीडर कौन होता है। लीडर इज वन हू लीड्स। सो वी डिस्कस दैट वर्किंग विद एंड थ्रू पीपल टू अकम्प्लिश गोल्स इज द लीडिंग। सो स्टूडेंट्स, जब हमने ये 3 फंक्शंस देख लिए, अब हम जो लास्ट मैनेजरियल फंक्शन है यानी कि कंट्रोलिंग, उसकी तरफ बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है और इसका जो साबका तीनों फंक्शंस हैं उनसे लिंक क्या है। सो विल सी व्हाट इज कंट्रोल। तो जी, कंट्रोलिंग डेफिनेशन आ गई। The process of monitoring activities to ensure that they are being accomplished as planned and of correcting any significant deviations. इन अल्फाज पर गौर कीजिएगा। डेविएशंस क्या होती हैं? जो चीज़ें आपके रास्ते से हटी हुई होती हैं, जो डेविएट हो, अगर करेक्शंस आप नहीं लगाएंगे तो वो डेविएशंस
बढ़ती जाएंगी. We can say that it is the process of monitoring, comparing, and correcting work performance. I repeat, it is the process of monitoring, comparing, and correcting work performance. कंट्रोलिंग को डेफिनेशन को समझने के बाद हम देखते हैं कि पर्पस ऑफ कंट्रोल क्या है. द पर्पस ऑफ कंट्रोल इज टू एंश्योर that activities are completed in ways that lead to accomplishment of organizational goals. जरा समझिएगा इस बात को कि कंट्रोल का मकसद ये है कि ये यकीन करना कि जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं वो इस तरह परफॉर्म हो ताकि वो हमें अपनी मंजिल मकसूद पर अपने गोल को अचीव करने के लिए उस रास्ते पर लेके चल सकें या उस रास्ते तक उस मंजिल तक पहुंचा सकें. सो दिस इज द पर्पस ऑफ कंट्रोल. नाउ वी विल सी व्हाई इज कंट्रोल इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने पहले कहा कि it is the final link in management functions. जो सवाल है why is control important? Dear students, planning can be done. An organizational structure can be created to facilitate the efficient achievement of goals. Please pay attention to my words. I said planning can be done. अब planning कर सकते हैं. An organizational structure can be created to facilitate the efficient achievement of goals. Planning कर ली, एक organization structure खड़ा कर लिया. और and employees can be motivated through effective leadership. Employees को motivate किया जा सकता है वाइब्रेंट डायनेमिक लीडर के थ्रू. बट एक मगर है, बट देयर इज नो एश्योरेंस दैट एक्टिविटीज विल गो एज प्लान्ड एंड दैट द गोल्स एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स आर वर्किंग टुवर्ड आर इन फैक्ट बीइंग अटेन्ड. सो लुबे लबाब ये कि प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजेशन बना ली, मोटिवेटेड एम्प्लॉयज अपने इकट्ठे कर लिए, मगर फिर भी ये गारंटी या एश्योरेंस नहीं दी जा सकती कि आप अपने गोल्स की तरफ मूव करेंगे या उनको अचीव कर लेंगे. फॉर दैट प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. फॉर दैट control is important because it helps the managers, it helps you to know whether organizational goals are being met, and if they are not being met, the reasons why. भाई जरूरी नहीं कि आप पता नहीं अगर मीट नहीं कर रहे अपने गोल्स तो कोई बात नहीं, मगर आपको उनकी वजह जरूर मालूम होनी चाहिए कि आप अपने गोल्स को अचीव क्यों नहीं कर पा रहे. फॉर दैट द वैल्यू ऑफ द कंट्रोल फंक्शन, इंपॉर्टेंस इसकी, कैन बी सीन इन 3 स्पेसिफिक एरियाज. वो 3 एरियाज हैं, वो 3 सीगे हैं, और वो क्या है? वो है प्लानिंग, एम्पावरिंग एम्प्लॉयज एंड प्रोटेक्टिंग द वर्क प्लेस. नाउ लेट्स सी व्हाट दे आर. प्लानिंग controls let managers know whether their goals and plans are on target and
व्हाट फ्यूचर एक्शंस टू टेक। प्लानिंग के मुताबिक आप देखते हैं कि आया आप जिस राह पर चल रहे हैं वो सही राह है, अपने गोल्स की तरफ जा रही है, या वो डाइवर्ट कर रही है, डेविएट कर रही है। फिर जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं, दे प्रोवाइड मैनेजर्स विद इंफॉर्मेशन एंड फीडबैक ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। आप एम्प्लॉयज की जो परफॉर्मेंस है उसको गेज करते हैं। ये याद रखिए कि मैनी मैनेजर्स आर रिलक्टेंट टू एम्पावर देयर एम्प्लॉयज। अपने पावर्स को जो एम्प्लॉयज हैं उनको एम्पावर नहीं करते, बिकॉज दे फियर समथिंग विल गो रॉन्ग, कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं वो मेरी कुर्सी पर आके ना बैठ जाए, पता नहीं वो मुझसे आगे ना निकल जाए। भाई यू आर अ मैनेजर, ही इज अ वर्कर, ही इज एम्प्लॉय। एम्पावर देम, उनको एम्पावर करेंगे, दो काम बेहतर करेंगे, एंड यू विल बी एबल टू एक्रू गुड रिजल्ट्स। एंड देन लास्ट इज प्रोटेक्टिंग द वर्क प्लेस। कंट्रोल्स जो हैं दे एनहांस द फिजिकल सिक्योरिटी and help minimize workplace disruptions. So these three specific areas, ये इन एरियाज पर जब आप फोकस करते हैं, इनके ऊपर अपनी कंसंट्रेशन करते हैं, तो यू establish an effective control over the activities of the organization. As we already studied, let's again recapitulate another thing, the planning and controlling link. अब देखिएगा, ये स्लाइड भी हम पहले देख चुके हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। अब देखिए कंट्रोलिंग में ये चार चीजें हैं, स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट्स, कंपैरिजन एंड एक्शंस। ये सारी चीजें किसके साथ पिच हुई हुई हैं? आगे आपने आगे जाना है ना, पीछे से चीजें आपको मिल रही हैं, मोटिवेशन भी मिल रही है, लीडरशिप भी मिल रही है, कम्युनिकेशन मिल रहा है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर भी मिल रहा है, स्ट्रक्चर आपने बना दिया, ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट आपने बना दी। अब आपने किसको देखना है? विद कंट्रोलिंग यू विल बी लुकिंग टुवर्ड्स द गोल्स। आप किधर देख रहे हैं? गोल्स को देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स को देख रहे हैं, स्ट्रेटजीज को देख रहे हैं, और अपने प्लान्स को देख रहे हैं। सो ये वो चार चीजें हैं जिन पर जब आप फोकस करेंगे तो आपके कंट्रोल्स फाइन ट्यून होना शुरू हो जाएंगे। सो स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट्स, comparison and actions when are picked against goals, objectives, strategies and plans, your processes are fine-tuned. I hope I have made myself clear. So now we'll move towards the control process. The process of control. ये क्या है जी? Basically, this is the crux. ये वो तीन चीजें हैं जिन पर जो कंट्रोल का जो प्रोसेस है वो रेस्ट करता है, जिसकी बेस पर हम अपनी जो कंट्रोलिंग एक्टिविटीज हैं उनको बेस करते हैं. फर्स्ट इज द measuring actual performance. I'll explain all these three processes right in this slide, and then we'll have the supporting slides we'll be having a supporting slides later on also. The first is measuring actual performance. Dear students, to determine what actual performance is,
a manager must first get information about it. मानिएगा कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए पहले मैनेजर के पास उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसका पूरा डेटा होना चाहिए. सो पहला जो स्टेप है वो मेजरिंग है. इसमें बेसिकली डिफरेंट तरीके हैं जिनसे हम मेजरमेंट्स जो कंट्रोल प्रोसेस की हम बात करते हैं तो करते हैं. इसमें पर्सनल ऑब्जर्वेशन इज वन. आप देखते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं एंड देन यू अप्लाई दोज थिंग्स. देन स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, डेटा जो होता है, स्टैटिस्टिक्स का डेटा जो होता है, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स जो होती हैं उनको सामने रखते हुए ऑरल रिपोर्ट्स और रिटन रिपोर्ट्स, ये वो चार चीज़ें हैं जिनके हवाले से, जिनके ज़रिए से हम मेजर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को. देन इज कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स. जो कंपेयरिंग स्टेप है ये डिटरमिन करता है वेरिएशन को किसके दरमियान, एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड के दरमियान. देखें, हम जब भी कोई बात करते हैं तो कहते हैं यार कि मैंने फलां चीज़ अचीव करनी है तो उसके लिए मुझे ये चाहिए. द डिफरेंस बिटवीन जो आपके पास है और जहां पर जाना है, दिस इज द वेरिएशन. इस वेरिएशन को हमने खत्म करना है. सो ऑल्दो याद रखिएगा कि सम वेरिएशन इन परफॉर्मेंस कैन बी एक्सपेक्टेड इन ऑल एक्टिविटीज. ये हमेशा याद रखें कि ये नहीं हो सकता कि वेरिएशन ना हो, और इन वेरिएशंस को खत्म करना ही जो कंट्रोल प्रोसेस का मकसद है. आई होप यू आर गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग. लास्ट इज the taking actions to correct deviations or inadequate standards. ये याद रखें कि मैनेजर के पास ये चॉइस होती है कि he can choose among three possible actions, three possible courses of actions. वो क्या क्या होते हैं देखें. डू नथिंग, कुछ ना करे. करेक्ट द एक्चुअल परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस है उसको दुरुस्त करे. और रिवाइज द स्टैंडर्ड, क्या करे, स्टैंडर्ड को रिवाइज कर ले. प्लीज रिमेंबर दीज थ्री थिंग्स. ये आपकी अपने लिए भी हैं कि कुछ कर लो, कि कुछ कर दिखाना, अपनी परफॉर्मेंस को ठीक करना, करेक्ट दी एक्चुअल परफॉर्मेंस, और फिर अपने स्टैंडर्ड चेंज कर लो. आप बता दें कि मैंने चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बनना, मैंने क्लर्क ही बनना है, मैंने एक छोटे लेवल के मैनेजर ही बनना है, तो फिर ठीक है. जब सीईओ बनना है तो यू हैव टू डू समथिंग. ठीक है, यू हैव टू करेक्ट द एक्चुअल परफॉर्मेंस. या कुछ ना करें, या करेक्ट करें, या फिर स्टैंडर्ड रिवाइज करें. सो आई होप वी आर a bit clear about the process of control. This whole lecture was about these three processes. I will just have a cursory look on the remaining slides. Now moving ahead. ये जो कंट्रोल प्रोसेस अगर आप ग्राफिकल फॉर्म में देखना चाहते हैं तो दिस इज. तो फर्स्ट मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड आपको दिया गया है, और फिर टेकिंग मैनेजरियल एक्शन, कि आपने उनको कैसे दुरुस्त कैसे करना. डू समथिंग, क्या बताया था कि डू नथिंग, छोड़ दो, अल्लाह के हवाले कर दें कि भाई नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता. क्या करें, परफॉर्मेंस को करेक्ट कर लें, उसको दुरुस्त कर लें, या फिर स्टैंडर्ड को रिवाइज कर लें.
हमने जो मेजरमेंट की हम बात कर रहे थे तो उसमें हमने बात की कि जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, ये चारों थे: पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, ऑरल रिपोर्ट्स एंड रिटन रिपोर्ट्स। ये ऐसे इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। तो वे कंट्रोल कैसे करेंगे उनको? एम्प्लॉयज की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, जब उनका टर्नओवर कम होगा, ठीक है, उनकी एब्सेंटीज्म खत्म हो जाएगी, तो सो दे आर सेटिस्फाइड। फिर बजट के हिसाब से कॉस्ट, आउटपुट, सेल्स, सो दीज आर दी सप्लीमेंट्री थिंग्स। Just have a look on these four sources of information कि इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं। पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो है ये आप खुद ले रहे होते हैं, सो यू आर कॉन्फिडेंट कि वट एवर यू आर गेटिंग इज ट्रू। मगर इसमें ये बाज़ वक़्त आपका इल्म, आपका बैकग्राउंड नॉलेज, आपकी पर्सनल बायसेस भी हो सकती हैं। स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स हैं वो, क्योंकि बेसिकली दे शो यू इफेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फैक्टर्स और आपको डेविएशंस के साथ बताते हैं। जो और रिपोर्ट्स हैं वो फिल्टर होके आती हैं, आप कोई मुख्तलिफ लोग बता रहे होते हैं, सो दे अलाउ फॉर वर्बल एंड नॉन वर्बल फीडबैक। रिटन रिपोर्ट्स, although they are very comprehensive, they are formal and they are easy to archive and retrieve also, but they take more time to prepare. It's a cumbersome process. ये जो हमने बात की थी डूइंग नथिंग, करेक्टिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, वो दोबारा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है जी। डूइंग नथिंग का मतलब क्या है? ओनली डेविएशंस जज टू बी इनसिग्निफिकेंट, कि कुछ ना करो, ये दुरुस्त है, जाने दो, इसको छोड़ दे, इग्नोर कर दे। और करेक्टिंग एक्चुअल और करंट परफॉर्मेंस, कि आपने करेक्टिव मेजर्स लिए, आपने लोकेट की कि प्रॉब्लम है क्या, तो कौन सा पॉइंट है जहां पर मैंने अपनी करेक्शंस या करेक्टिव मेजर्स लगाने हैं, और एक्शंस क्या हो सकते हैं इसमें। करेक्टिव एक्शन, व्हाट आर द करेक्टिव एक्शंस व्हिच यू कैन टेक। स्ट्रेटजी चेंज कर दें, उस प्रोसेस का स्ट्रक्चर चेंज कर दें, मे बी कि कंपनसेशन चेंज कर दें, कोई रिवॉर्ड सिस्टम कर दें, कोई अलाउंस दे दें। लोगों को मे बी ट्रेन करना चाहते हैं, ट्रेनिंग से बेहतर हो जाए, रीडिजाइन कर लें। या अगर आप ये समझते हैं कि कुछ ऐसे अनासर हैं जो आपके प्रोसेसेस को खराब कर रहे हैं, तो उनको फायर कर दें। इट इज ऑल्सो वन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर्स to identify such people who are creating hindrances for the organization. They are hindering the processes of the organization. They are retarding the processes of the organization. They may be fired. They may be laid off. So managers have to be very, very critical while analyzing various factors. So next, रिवाइजिंग द स्टैंडर्ड की हमने जो बात की थी कि भाई अपने जो स्टैंडर्ड है उसको असरटेन करें कि जो आपने सेट किया क्या वो अचीवेबल है कि नहीं। मे बी कि आपने बहुत हाई गोल सेट कर दिया हो, हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया हो, तो उसको रियलिस्टिक, फेयर और अचीवेबल बनाने के लिए यू मे हैव टू गो बैक एंड सी how it can be modified, or how it can be reset, how it can be revised. So there's no harm in getting back and seeing what revision can be done. So now we are clear about these 3 steps of the control processes: the measuring, comparing and taking the managerial actions. Okay, now let's see graphically के managerial decisions in the control process. तो ये जो आपके सामने फिगर है, इट इट्स समराइजिंग
the decisions a manager makes in controlling. ये याद रखें, ये जो स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे हैं, ये इसकी the standards are goals that were developed during the planning process. ये याद रखिएगा कि standards are goals that were developed during the planning process. And now these goals, they provide the basis for the control process, which involves measuring the actual performance. So ये वो गोल्स हैं जिनको सामने रखते हुए हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे और इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, एक्चुअल परफॉर्मेंस. सो आपने क्या देखा, एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमने विच स्टैंडर्ड किया कि इज बीइंग स्टैंडर्ड बीइंग ऑब्टेन्ड. आपने कहा यस, मैंने कहा कुछ नहीं करना, ओके गुड, और आप सीधा वापस आके एक्चुअल परफॉर्मेंस पे आ गए, गुड. अगर आपने कहा इज स्टैंडर्ड नॉट बीइंग मेंटेन, क्या करेंगे, इज वेरिएबल जो वेरिएंस है, जो प्रॉब्लम है, वेरिएशन है, एक्सेप्टेबल है. आपने कहा यस, डू नथिंग, ठीक है, कोई बात नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, तो लेट्स मूव अहेड. आप वापस चले गए और आप काम करते रहे. अगर आप वेरिएंस एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, आप एक और सवाल पे जाएंगे, इज स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल. आपने कहा हाँ यार, इस वेरिएशन के साथ भी ये क्वालिटी ठीक है, कोई बात नहीं. तो फिर अगर यस है तो आइडेंटिफाई कॉज ऑफ वेरिएशन, आइडेंटिफाई करेंगे कॉज ऑफ वेरिएशन, उसमें करेक्शन लगाएंगे और अपना काम शुरू कर देंगे. अगर स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल नहीं तो आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे स्टैंडर्ड को, नए गोल बनाएंगे और फिर आप परफॉर्मेंस अपनी को दोबारा मेजर करेंगे. सो कीप दिस चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू एंड एज एन एक्सरसाइज सेट अ स्टैंडर्ड. एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लें और उसको फिर उसके गोल्स बनाएं, उसके स्टैंडर्ड्स बनाएं, उसकी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, उसकी मैनेजमेंट बनाएं, एचआर बनाएं, और फिर उसको देखें कि क्या ये चीजें सारी उस पर लागू होती हैं कि नहीं. सो इफ यू विल critically pitch your activities against these processes, you will be able to get a good picture of what is happening in your organization. So it's a very, very important process graph or process, so not a graph, process layout, which can help you in understanding the managerial decisions which you take in the control processes. Controlling of organizational process. What is performance? हम ऑलरेडी बहुत देख चुके हैं इसको. परफॉर्मेंस है क्या, एंड रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी. आप ये देखते हैं, आप यार आपका क्या परफॉर्मेंस रही इस सेमेस्टर में. यार मेरा जीपीए 3.5 आया. सो 3.5 इज द एंड रिजल्ट ऑफ योर परफॉर्मेंस. दूसरे से पूछे आपका क्या सीजीपी आया, 1. ओहो यार, यू हैव नॉट परफॉर्म्ड वेल. सो दैट इज द एंड रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी, वो उसकी परफॉर्मेंस है. अब जब हम ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो वो क्या है, जेंटलमैन एंड लेडीज, the accumulated end result of all of the organization work processes and activities. ये कहां से स्टार्ट है, उस फेज से जो डिजाइन की फेज है, जो प्लानिंग की फेज है, स्ट्रेटेजीज, जो स्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स, बजटिंग, कॉस्टिंग, वर्क एक्टिविटीज एंड coordinating each and everything till you get a refined process job output, a product
तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस है, परफॉर्मेंस है। एंड रिजल्ट आ गया, वो एक कोल्ड ड्रिंक बनाया, या एक जीन्स बनाई, या एक लेदर का बैग बनाया, कंप्यूटर बनाया, वट एवर द आउट द फिनिश प्रोडक्ट इज, दैट shows the performance of your organization. So ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस जो मेजर्स हैं वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी, the overall output of goods or service divided by the inputs needed to generate that output. देखिए ना, हम हमेशा बात करते हैं यार कि कितना सरमाया लगाएंगे कितना प्रॉफिट होगा। सो आप इनपुट देते हैं, मुख्तलिफ ह्यूमन रिसोर्स की है, बिल्डिंग की है, आपके रॉ मटेरियल है, पैसा है, सारा कुछ। फिर आप आउटपुट आपकी क्या होती है? प्रोडक्ट के साथ आपके रेवेन्यूज आते हैं। अब इन दोनों को जब माइनस करते हैं तो यू गेट द प्रॉफिट्स, तो ये प्रोडक्टिविटी है आपकी। सो प्रोडक्टिविटी ये याद रखें कि इट्स द मेजर of how efficiently employees do their work. जितना अच्छा employees काम करेंगे, you will get better product, a quality product, and you will be able to get good revenue, sales revenues, and ultimately you will have better profits. Same उसी continuation में ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ये बेसिकली जो आप जब मेजर करते हैं कि हाउ अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स आर, हाउ वेल द ऑर्गेनाइजेशन इज अचीविंग इट्स गोल्स, उसमें आप उसके सिस्टम रिसोर्स मॉडल्स को देखते हैं, प्रोसेसेस को देखते हैं, और जब उन सारी चीज़ों को आप मिलाते हैं तो, और जब एंड प्रोडक्ट है उसके, जो उसने अपनी एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए जो काम कर रहे हैं, जो उसकी एफिशिएंसी है ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक, जो इनपुट से चीज़ों को, इनपुट से आउटपुट तक जो उसका इफेक्टिवनेस है, जो प्रोसेसेस की, वो कैसी है। सो वंस यू मेजर दोस, कीपिंग दैट, जो हमने मॉडल दिखाया आपको, उसको सामने रखते हुए आप चीज़ों को मेजर करेंगे तो यू विल बी एबल टू सी कि आपने ये जो मैनेजमेंट डिसीजंस हैं, जो उनके कंट्रोल प्रोसेसेस हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो इफेक्टिवनेस आपको सामने नजर आती है। अब हम ये रैंकिंग्स करते हैं इंडस्ट्री की, जस्ट फॉर योर नॉलेज। ये वो चीजें हैं, इंडस्ट्री की रैंकिंग किस पर होती है? प्रॉफिट्स के ऊपर, रिटर्न क्या है रेवेन्यू के ऊपर, शेयर होल्डर्स की इक्विटी क्या है, ग्रोथ क्या है प्रॉफिट, रेवेन्यूज पर एम्प्लॉय क्या है। भाई ये नहीं सब पीआईए की तरह कि कंपनी हसारे में है क्योंकि एम्प्लॉय ज्यादा हैं, तो आपने पर एम्प्लॉय रेवेन्यू भी निकालना होता है, एंड इक्विटी और एसेट्स के हिसाब से आपकी जो है। फिर जो कल्चरल ऑडिट है वो देखते हैं, बेनिफिट सर्विस देखते हैं, और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी कि क्या कस्टमर इस कंपनी से सेटिस्फाई है कि नहीं। इन तमाम चीज़ों को जब होलसम में आप देखते हैं तो यू डिफाइन industry and company rankings. Ladies and gentlemen, with this we come to the end of today's lecture, and inshallah in part 2, which we'll be taking in as part of lecture 10, we'll be discussing next week. So today we have finished the 4 functions which managers perform: planning, leading, controlling, planning, leading, organization and controlling. So controlling में जो सबसे important चीज मैंने आपको बताई वो 3 प्रोसेसेस थे, और वो क्या थे? measuring, comparing और taking managerial decisions. फिर जो एक समरी मैंने आपको दिखाई मैनेजरियल डिसीजंस को, उसको जरूर गौर से देखिएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह ब्लेस यू ऑल।
टेक केयर, अपनी सेहत का ख्याल रखें, घर पे रहें और कोविड-19 से बचिए। हाथ धोइए, अपनों लिए, अपने प्यारों के लिए, घर पे रहें, पढ़ें। दिस इज द बेस्ट टाइम विच यू कैन यूटिलाइज फॉर प्रिपेयरिंग फॉर forthcoming exams. Thank you very much. Allah Hafiz.